व्हाट्सअप गाइस, बहुत टाइम के बाद एक और वीडियो ड्रॉप होता हुआ. आई थिंक आई फाउंड द हैक टू get back to my routine. And as simple as it may sound, or as silly as it may sound, it was simply going on the morning walk. That's it. Because when I woke up, one thing that was chronically happening was that I would always check my phone, try to get work done, subah bilkul. And as a result of that, I woke up feeling really groggy. By the time the actual work hours rolled around, my brain had already consumed enough information and Instagram कि it was practically rendered बिल्कुल खुट्टल. हमारी एक वर्ड होता है, बाप रे बाप, सुबह सुबह खुट्टल एक वर्ड होता है, तो खुट्टल हो जाता था दिमाग. तो उस लेवल तक वी हैड रीच कहीं ना कहीं से. एंड इस वजह से आई रियलाइज़ कि यार देखो, मेरी लाइफ के सबसे बड़े बिग ब्रेक थ्रूज जो हैं हैव ऑलवेज हैपेंड व्हेन आई समहाउ मैनेज टू wake up early in the morning and go on a walk. The go on a walk part is important because if you wake up by 6, by 6:30 you should be out of the door. And if you can get like a 1 hour walk without music is also important because otherwise फिर से consume कर रहे हैं, right? Without music, then you can be back by 7:30. If you're back by 7:30, then you can again train in your home body weight training for 1 hour. So that puts you from 6:30 to 7:30, 7:30 to 8:30, 8:30 to 9 you can shower, spend some time with the family, and उसके बाद 1 घंटा you just think about creatively about your clients, and then you're ready to hit the day hard. And you would be just in time to wind down by 8 p.m, 9 p.m आराम से सब कुछ निपटा के. But yeah, that was basically the breakthrough. Okay, be very mindful of content consumption, and the only way to be mindful of that was to wake up early and actually go on this walk without earphones, without AirPods, without any source of consumption as such. The phone was only there because I had to record this, and also to keep track of my steps and my क्या कहते हैं इसको, just for like emergency purposes. उसके अंदर आई थिंक यही वो फॉर्मूला रहा है which has worked for me in the past as well. So I'm just going to use it to get back onto it now. I'm really sad that I had fallen off from it, but it's time to get back into it now. Ladies and gentlemen, the power of waking up early. अभी 2 घंटे भी नहीं हुए हैं. I'm done with my breakfast, done with my walk, and I'm also done with my workout. और अभी literally 8 भी नहीं बजा है सुबह का. That is what I'm talking about, and I can already feel the difference in the sharpness of my brain. क्योंकि बीच में मेरे दिमाग में आया कि मैं अपना कैलेंडर हल्का सा एडिट कर लेता हूँ. एडिट क्या मतलब, एक तरीके से मुझे एक नया स्लॉट बनाना था फॉर अनदर एक्टिविटी. एंड आई सेड टू माई सेल्फ, ये वर्क वाले टाइम में करेंगे. द कॉन्शियस एबिलिटी टू से नो टू अ टास्क दैट इज important but not necessarily urgent and slotted in that particular period of time shows कि you are present in the moment enough to say that I value the current moment so much so कि मैं ये वाला जो टास्क है, ये जब इसका वक्त आएगा मैं तब कर दूंगा. एंड देन हैविंग द एबिलिटी टू डिलीवर अपॉन दैट प्रॉमिस व्हेन द टाइम कम्स फॉर इट. ऐसा भी नहीं कि मतलब जब वक्त आया तो आपने करा ही नहीं. दैट केस तो आप प्रोक्रेस्टिनेटर हो गए. ये मेरे अंदर एब्सेंट थी बिल्कुल फॉर द लास्ट 2 से 3 हफ्ता, लाइक क्योंकि आई थिंक मैं उठ बहुत ही वियर्ड तरीके से रहा था. एंड एज सून एज आई went back to the schedule, मैं पहला चक्कर लगाया मैंने, तो of course I did not carry like my AirPods because I seriously now think कि media consumption is a really big problem. So if you're watching this video, even if it means like not watching these videos, stop your media consumption or at least reduce it drastically. You will feel the difference. वो जो boredom आएगा ना, उसी से creativity आएगी. वो जो आप खाली बैठेंगे ना, तो जो चीज़ आपको जो आपके दिमाग में आ रही है वही है जो आपको करनी है. आपका
जो मीडिया कंजम्पशन इज जस्ट डिस्ट्रैक्टिंग यू फ्रॉम दोज थिंग्स जो आपके दिमाग में तब आ रही हैं व्हेन यू आर नॉट कंज्यूमिंग मीडिया। तो मैं जब गया वॉक पे तो पहले राउंड में तो मेरा दिमाग बंद था बिकॉज आई जस्ट वोकन अप एंड आई रियलाइज के द रीज़न आई कुड डू सो वेल in the morning after my walk was because I was being woken up with 1 hour exposure of natural sunlight और luckily इंडिया में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे इतनी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है तो आई कुड गेट दैट सनलाइट। ऐसा नहीं कि आप डाउनटाउन दुबई के अंदर अगर आप निकल जाए आई एम नॉट वेरी श्योर कि आपको सनलाइट कितनी मिलेगी। बट दैट बीइंग सेड आई वाज बीइंग वोकन अप बाय इट और मुझे पूरा 1 घंटे का बफर मिल रहा है टू नॉट डू एनीथिंग, जस्ट बी विद माई ब्रेन। वो आराम से उठ रहा है, चल रहा है। इट्स लाइक यू नो हाउ यू वेक अप एंड इफ यू आर ग्रॉगी यू स्पेंड सम एक्स्ट्रा टाइम इन बेड। इट्स माई एक्स्ट्रा टाइम इन बेड बट एक्टिवली स्पेंड। सो तब मेरा दिमाग इतना एक्टिव नहीं है। इट्स जस्ट टेकिंग इट्स टाइम टू फ्लेक्स इट्स मसल्स। उस टाइम के अंदर आई एम फ्लेक्सिंग माई रियल मसल्स विच इज़ बाई वॉकिंग, बाई वर्किंग आउट। तो नाउ व्हेन आई फील लाइक अच्छा अब मेरा दिमाग थोड़ा ठीक हो रहा है तो आई विल जस्ट हिट द शावर, आई विल कम बैक एंड आई हैव अ ग्रेट डे अहेड। द ओनली डाउन साइड वुड बी कि मुझे नींद बहुत ज़्यादा आने वाली है बिकॉज कल रात लाइट बहुत ज़्यादा गई थी विच मीन्स कि मैं बीच में बहुत बार उठ रहा था। एंड इस बार तो मैं अम्मी को सुला के यही बोल के सोया था कि मतलब मुझे 6 बजे उठा देगा बाय एनी कॉस्ट, राइट? क्योंकि मेरे साइड में अलार्म बजता है, शी वेक्स अप बाय इट एंड आई जस्ट लाइक साइलेंस इट, में सो जाता था। तो आज उन्होंने मुझे उठा दिया तो लकीली दिस गिव्स मी लाइक द राइट डायरेक्शन। बस एक वो डायरेक्शन चाहिए होता है, छोटा सा बूस्ट, तो वो बूस्ट मुझे मिल चुका है। नाउ आई जस्ट नीड टू फॉलो अलॉन्ग दिस ट्रेजेक्ट्री एंड हिट एवरीथिंग। और अगर इफ एवरीथिंग गेट्स हिट आई एम वेरी श्योर आई हैव लाइक अ वेरी फैंटास्टिक डे अहेड। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो दोपहर का बज रहा है इस वक्त 1:35। 1:30 से 1:45 तक वैसे मेरा लंच था लेकिन मैं थोड़ा अर्ली ले लिया था। फीलिंग गुड, वर्क इज़ मोस्टली रैप्ड अप, आई जस्ट नाउ हैव टू कैटर टू अदर पीपल्स वर्क, उनको थोड़ा सा गाइड करना है। बट यू कैन सी बेनिफिट्स ऑफ वेकिंग अप अर्ली। आई एम डन विद माई होल डे, इट्स ओनली द आफ्टरनून। गाइस अभी हो रहा है 9:30 PM, ऑल वर्क रैप्ड अप। अच्छी हवा चल रही है, बिल्कुल बेहतरीन। आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट बट आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल क्योंकि मुझे आ रही है नींद, विच मीन्स कि मैं जाते जाते सो जाऊँगा। शायद कैमरा गंदा होगा, आई नो दैट इम्प्रूव द क्वालिटी अ लिटिल बिट but I'm just so happy the day has come to an end. Alhamdulillah, Monday has passed. Monday is usually like super difficult simply because एकदम से काम आता है। I'm just so relaxed. मुझे बस मगरिब पढ़नी है और इशा पढ़नी है। Apart from that I'm all set. आज मैंने ज़ोहर टाइम पे पढ़ी और असर टाइम पे पढ़ी एंड द रीज़न फॉर दैट वाज कि मैंने वो दोनों कैलेंडर में रखी हुई थी। मगरिब पर कुछ बहुत अच्छा टाइम फिक्स नहीं हो पा रहा था अनफॉर्चुनेटली, सेम विद ईशा। तो ईशा का तो चलो सही है कि सोने से जस्ट पहले पढ़ लो, मगरिब पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा किस तरीके से फिट करना है। बट आई एम जस्ट लाइक सुपर ग्रेटफुल मैन, सुपर डुपर उबर ग्रेटफुल। नाउ आई हैव लाइक माई 8 hours worth of sleep, I'll call it a day.